night, Shraddha, Raj, me, and we were sitting and we were having dinner. So it's not settled in our heads right now. You know, we've generally been always, for the last 3 years, an underdog film. And you all give us so much love. Now suddenly this very interesting word called expectation has come in. You know, we're probably the biggest advance of the year. And वो बोलते बोलते भी थोड़ा हम शायद फील करते हैं. लेकिन I think what is most important is that Stree 1 has a lot of love. I have a nephew who's 8 years old. I don't know why, but he doesn't eat without watching Stree. So kids like it. My mother likes it. So that generation likes it. So I think this Independence Day, which is a holiday, we as a country like being together. So I think the fact that it's a film where everybody can go and see it, you know, be it a child, be it a parent, be it your grand, it gives you the opportunity to experience it. And also I think this time Amar has managed to make it bigger, crazier, and though he'll answer all your questions, he's going to give you some questions also. So it's a film I think right now here, not many people have seen the film because it's just been delivered. But I think it's one of the best films we've made because of the experience it gives you. So when you're in a theatre, you really enjoy it. And somewhere I think today the audience and the media has become very intelligent. They can sense what the film is offering. And that's why, you know, we can talk about numbers and all, but the fact is it's love, right? It's not numbers. People have have come with love, and, you know, I hope it lives up to all their expectations. And if that happens, I think we'll be really, really, really happy. Thank you so much, sir. And I think we're gonna get even beyond our expectations. Since you mentioned that it is one of the best films that you've made, I would really love to take the liberty and mention that it is also one of the best films that we as an audience have ever watched. Thank you so much, sir. Thank you. And now, of course, to our Stree herself, I would love to ask you, Shraddha, first of all, welcome here, welcome to Delhi, welcome to us. And I would love to ask you that you are coming as Stree once again after 6 years. It's the eve of release and we're going to start the evening shows by tonight. The theatres are already packed. How happy you are about it? Oh, check. तो जैसा मैं कह रही थी कि स्त्री मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है जो दिनेश विजन और अमर कौशिक ने मुझे दी है. सो फॉर मी इतनी स्पेशल फिल्म है, इतना सारा प्यार मिला है फिल्म को. अभी पार्ट 2 आ गई है और जो एक्साइटमेंट हम देख रहे हैं लोगों में वो बहुत ही हम्बलिंग है. एंड इट्स वेरी स्पेशल टू बी हियर इन दिल्ली. दिल्ली मेरा दूसरा घर है, बहुत वक्त बिताया यहाँ पे बचपन में. एंड जब मेरे बाबू ने आशिकी देखी थी ना, उन्होंने दिल्ली में देखी थी और उन्होंने कहा कि दिल्ली की जो एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्स है. और मेरे बाबू ने फिल्म देखी तो वो पॉजिटिव एनर्जी आई फील कि दैट फ्राइडे ऑल्सो चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी. सो एक बहुत ही सिमिलर फीलिंग महसूस हो रहा है. स्त्री भी वैसी ही फिल्म है, मेरे लिए बहुत दिल के करीब है. एंड जस्ट एज Dinu said कि it's got so much love that we really hope that everyone gets entertained, everyone goes to the theatres and watches it with their families and their friends and just has a great time. This is my film that I am very proud of. So it's a very good feeling. How sweet. Thank you so much, Shraddha. And now, of course, over to you, Rajkumar. Welcome back home. And welcome back home with Stree 2 as well. We are more than excited to see you back on screen. Whenever you are up there, you leave us awestruck with your talent. And now we are back again. How do you feel about it? I feel absolutely thrilled. I feel even more thrilled because today the whole gang is here. Stree is these people and Pankaj ji, of course. It's so much fun to be a part of this film. It's such a special film for all of us. स्त्री ने हमेशा हमें सिर्फ दिया है. आई थिंक हम सबके करियर में एक बहुत लंबी जंप दी थी स्त्री 1 ने, और आई थिंक स्त्री 2 जो है दोबारा एक बहुत लंबी जंप हमको देने वाली है. और ये सब पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ योर लव. स्त्री इज नॉट आवर फिल्म, स्त्री इज योर फिल्म.
ये आपकी फिल्म है, आपने इसको इतना प्यार दिया, आपने इसको इतना बड़ा बनाया, एंड वी आर सो थ्रिल्ड कि वी आर बैक विद स्त्री 2 बिकॉज हमको बहुत मजा आया बनाने में. वी हैड अ ग्रेट टाइम ऑलवेज, व्हेनेवर वी ऑल आर टुगेदर वी हैड अ ग्रेट टाइम, वी हैव अ ग्रेट टाइम. और हमें पता है कि हमको जितना मजा आया उससे ज्यादा मजा आपको स्क्रीन पर आने वाला है. सो आज से प्रीव्यू शो स्टार्ट हो गए हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दे आर ओवरवेलमिंग. वी आर on cloud 9, we are all grateful, there's a lot of gratitude. So thank you so much इतना प्यार देने के लिए आपकी अपनी ही फिल्म को. तो प्लीज जैसा हमने पहले देखा, स्पॉयलर्स के लिए बोलिए सबको ना दें, जाकर फिल्म देखें. हैव अ ग्रेट टाइम एट मूवीज गाइस. I want to ask Tay, that everyone knows Rajkumar Rao is a very very good actor. He's done so many good performances. But my entire gang saw the film and they all feel that his comic timing is impeccable, right? We've seen that. But I have to tell you, one, like if you have to have 5 reasons to watch 3, one will be Rajkumar Rao's performance. He takes you through a realm of emotions. He takes you through a journey. And I'm not just saying this, okay, I'm saying this because he's sitting here. But You cannot sit here, I'm sitting. But he is, and I think we saw him dance in Aine, and people said, "Hey, what is this side of Raj?" That it's the same side of Raj which had come 6 years ago. So we urge him to do more comedy. We urge him to do more films and I actually believe it's a very tall ask, but it's his most wholesome performance among everything he's done. So all the best, Raj. I hope it does well for you. Yeah, I hope it does well for you. बाकी कुछ हुआ हो तो बोल चुक मार दिया. Thank you so much, guys. So, by the way, from the movie, from the script, it seems that you guys, all of you, are a notorious bunch. And this one is especially for you, Amar, that you've been working with them and you worked on Stree 2 with them. I have a special question for you. Who amongst them is the most notorious one to work with? And Amar himself. Amar himself. ये दोनों ए नाम के जो लड़के हैं The naughtiest kid on the block. मैं तो शरीफ हूँ, तुझे तो पता ही है. सबसे ज्यादा तो मुझे ही पता है ये सूट नहीं कर रही है, लाइन सूट नहीं कर रही है, डायलॉग सूट नहीं कर रहा है. बताओ. सबसे ज़्यादा शैतान नहीं, बट मेरे अंदर जो शैतानी आई है सबके वजह से आई है, क्योंकि ये लोग मुझे आराम से बैठने नहीं देते हैं. ये इतना मज़े करते हैं सेट पे सबके सब, तो मुझे भी इन्वॉल्व होना पड़ता है. और हमारे जो एडीज हैं आके बोलते हैं सर शॉर्ट रेडी है, प्लीज़ चलो 2 मिनट ऑन कर दो, मस्ती वाली. तो हम लोग ने सारे डायलॉग सेट पे लिखे हैं, मस्ती करते करते लिखे हैं. मेरा राइटर हमेशा सेट पे रहता था एंड वही क्या? You're the most better. हाँ, तो शैतान सबसे ज़्यादा यही लोग हैं. बट आप कुछ ये बोलो ना कि जना की दीदी कैसी है इसकी? हाँ तो दीदी क्यों है मेरी? हाँ तो जना जने के दिल पे लग रही है बात, दीदी बुलाया जा रहा है. अच्छा, वैसे तो ये मूवी को लेकर इनसाइड जोक चल रहा है, बट दिस इज अ स्पेशल क्वेश्चन टू यू. क्या रियल लाइफ में भी आप इसी भावना से देखते हैं हमारी स्त्री, हमारी श्रद्धा को? भावना तो ये भावना है. भावना और ये भावना को ऐसी भावना से नहीं देखता है. देखिए बात क्या है, श्रद्धा कपूर को देखने के लिए सिर्फ प्रेम भाव ही चाहिए और कोई भाव नहीं आता. Sir, I completely agree with you. वैसे, in fact, हमारे, I think I as a girl would have that प्रेम भाव for you, Shraddha, because आप हो ही इतने खूबसूरत. We also got a song for you to specially. If a girl is saying that to a girl, that means a lot. बहुत कम बार ऐसा होता है कि एक लड़की ने एक और लड़की को ये बात बोली. एक्चुअली एक स्त्री के लिए दूसरे स्त्री का प्यार ही सबसे बड़ा होता क्या है. बात. I know, right? I think that women empower women in the most powerful way. I agree with that. So yes, guys, congratulations once again. और हमारे बिट्टू जना से भी हम पूछना चाहेंगे, but we would also love to know from you what is the sort of excitement you are having. Nervousness है, खुशी है. What are all those emotions? यार आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार गला खराब है लेकिन नियत बिल्कुल ठीक. आई थिंक विदाउट साउंडिंग टू मच, Stree 1 got a paradigm shift to the way we made films in our country. और अगर हम उसका सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट्स बिगर, बेटर, फनियर, स्केरियर, सब एक साथ. आप नंबर्स आप सबके लिए सामने हैं देखने के लिए. एंड यू नो जस्ट स्पोक अबाउट द एडवांस बुकिंग, वो सब एक तरफ है, वो सब नंबर्स हैं और वो सब आई थिंक आप सबके लिए अवेलेबल है. वन थिंग व्हिच यू might not know is that what makes for me which makes Stree 2 very very special is that
each and every person attached to this film came back after 5-6 years with a certain kind of growth, with a certain kind of love. Each and every person had an amazing journey in their individual careers. And lastly, all those people were present there. सब वही actors, वही producer, वही director, and to top it all, which really, you know, is the nail on the coffin for me, is कि ADs भी same थे. You know, Vidhi, Vivasha, everyone. This is an unprecedented situation कि second part बनने जा रहा है और crew भी same है. So I think this is something which makes our team very special. And Touchwood, I think we are here for another round of Touchwood pickups. Touchwood. क्योंकि मेरा ये था कि जो प्यार से हमने फर्स्ट बनाई थी, एग्जैक्टली वही एनर्जी, वही प्यार से मुझे सेकंड बनानी थी. और जितना आप लोग इंतजार कर रहे थे सेकंड पार्ट का, उतना हम भी इंतजार कर रहे थे कि हम वापस सेट पे कब जाएं, हमारी टीम वापस सेट पे कब जाए. क्योंकि वो 30-35 दिन का एक्सपीरियंस था फर्स्ट पार्ट में, तो वही हमको वापस जीना था. और आप फिल्म देख के खुश होते हैं, हम लोग बनाते हुए बहुत खुश हुए इस फिल्म को. तो आपको सबसे ज्यादा तंग किसने किया? सबसे ज़्यादा तंग, अगर आप मेरा नाम ले लोगे तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा. सबसे ज़्यादा तंग मुझे अभिषेक ने किया, क्योंकि ये बोलता रहता था मुझे कि मुझे 5 मिनट और दो ना आने की. 5 मिनट बोल रहे हो आज भी अभिषेक ही लेट आते हैं. अरे सर सर अभिषेक के अभिषेक जो always बाल comes late. मेरा हेयर स्टाइलिस्ट ये यूज कर रहे थे. इसीलिए अभिषेक के जो हेयर है ना, सो उसमें थोड़ा टाइम लगता है. वो इतने मतलब यूनिक हेयर स्टाइल. एक्चुअली अभिषेक की 2 पिक्चर रिलीज हो रही है ना, तो इसलिए उसको टू मच इन डिमांड. कैसा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अभिषेक? मेरा आई थिंक मुझे लगता है कि स्त्री 1 जब मैंने की थी, मेरी पहली फिल्म थी. उससे पहले मैंने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं था. हिंदी फिल्म किया था मैंने एक अच्छी, जिसमें बहुत डरावना रोल किया. अमर भाई ने पता नहीं मुझे क्यों ऐसा जना की तरह इमेजिन किया. मुझे हमेशा पिट्टू करना था. लेकिन अब कर ले यार, स्त्री 3 में कर लेता हूँ. लेकिन इन्होंने मुझे मतलब आई थिंक जना की तरह देखा. और वो जब मैंने फिल्म की, मुझे कुछ नहीं पता था कि फिल्म कितना कमाएगी ये वो. मुझे इतना पता था कि राजकुमार राव एक बहुत खतरनाक एक्टर है, जिसको मैं कई सालों से जानता हूँ, FTI के टाइम से जानता हूँ, जिसने मतलब अपने स्टूडेंट फिल्म के टाइम से मैंने उसकी एक्टिंग देखी हुई है. और मतलब मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, इंडिया में मुझे नहीं लगता इस वक्त इससे बेटर कोई एक्टर है. और बैठा है इसलिए बोल रहा हूँ. मैंने कल रात को पीछे से ही बोला. इसने क्या बोला था, मैं सबकी तारीफ करूंगा, मेरी भी करवाना. इसमें बोला तो हम लोग सब लोग इसके. चलो इसके बाद अभिषेक की बात ये करें. तो हो ही रही है. अमर के बारे में उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे तो नेक्स्ट 3 में होगे नहीं. तो बोला सर एक सेकंड, अरे अभिषेक तुम बोल रहे थे, तुम खत्म करो. वो स्टूडेंट टाइम से देख रहे थे पर उसमें. मुझे भी कुछ ऐड करना है टू जो आप कह रहे हो हाँ, कि नीचे करो यार इनका. क्या? नहीं उनका कैमरा नीचे क्या लगा. हो गया उसमें? क्या हो गया? भाई पक्के हो गए. क्या हो गया भाई? श्रद्धा कुछ कहना हो रहा है. अरे हाय रोहित शर्मा. अरे रोहित शर्मा भी है. मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ. जो अभिषेक कह रहे हैं ना कि राज इज अ ब्रिलियंट एक्टर. आई completely agree. मैं ज़्यादा थिएटर्स में फिल्में नहीं देखती. एंड द लास्ट फिल्म दैट आई रियली wanted to go and see was Shrikant. And that was because of Raj and the way that he has performed. And one of the most special reasons, I think, again I want to thank Dinu and Amar for casting me in this film to make me a part of this gang, is इतने बेहतरीन एक्टर्स के साथ मुझे मौका मिला है to work with. And जब इनको लाइव देखती हूँ ना, there's too much to learn, and to get that the second time around has been amazing. So I just wanted to add that it's been एक छोटा सा कन्फेशन, और ये बात चली रही है तो छोटा सा कन्फेशन मैं भी करना चाहता हूँ. Christian है तुम. Madam made another, you know, film called हम तो हमारे दो. When it came to me, they're like यार ऐसे ऐसे है. उस टाइम पे ना मैं इस फेज में नहीं था कि मेरा सेकंड लीड करने का मन करे. Then I got to know कि Raj is doing the lead. For me, not Three, not हम तो हमारे दो, any film later on in any part of my career, Raj is always my hero. And I think Touchwood, the personal and professional ethics he has taught me, मेरे को और किसी ने नहीं सिखाया. मतलब तुझे सेकंड लीड करना था, तो थर्ड लीड में खुश. मैं फोर्थ भी करने को तैयार हूँ. अगर पहले 3 पार्ट राज के तो मैं चौथा भी करने को तैयार हूँ. और एक्चुअली कौन सा एक्टर है जो बैक टू बैक
परफॉर्म करता है एज अ वर्सेटाइल एक्टर. सो आई डोंट थिंक यार अभी ये सब लोग मुझसे बहुत पैसे मांगेंगे. बेसिकली हम ये बोल रहे हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट ले ली. अभी तो नेशनल अवार्ड का सीजन है भाई, अभी क्यों लाइफ टाइम Oh God. अच्छा शारदा पोलाइट लगे अच्छे से बोल रही है कि हमें पंकज जी को बड़ा मिस करना चाहिए. तो ओए. इस टाइम पे डेफिनेटली कर रहे हैं. बहुत मिस कर बहुत रहे हैं. ज्यादा. कैसे आप सब बाबू कैसे कर सकते हैं? पंकज जी क्षमा के साथ ना सुन. तो ये क्षमा मांगनी चाहिए कि वो क्षमा के साथ है. पंकज जी हमारे भाई पंकज जी कहाँ है? पंकज जी बीमार है. अगर पंकज जी की बात छेड़े तो क्विक किस्सा स्त्री वन का पंकज जी. सो आई एम अ वेरी अप टेम्पो एनर्जी. आई डोंट हैव टू से इट, लोगों को पता है कि सक्लियो वेरी. सो एक दिन लंच खत्म करने के बाद मैंने अपने स्पॉट पे बोला कि यार तुरंत से पहले चाय दे दो. सो पंकज जी यही वैरायटी बैठ के लंच कर रहे थे सारे बैठ के. पंकज जी कहते हैं अब्बार बाबू सिर्फ एक दरख्वास्त है तुमसे, ये ना तत्काल में जीना छोड़ दो. तत्काल में जीना छोड़ दो. कभी किसने डायलॉग सुना नहीं था. सो आई थिंक दैट टेम्पो एनर्जी. सो ही हैज सम वेरियस क्वर्की वेज टू. जिस तरीके से पंकज जी ने सारे डायलॉग्स बोले हैं फिल्म में, जिस तरीके से जब वो सेट पे आते हैं तो आपको लगता है कि पंकज जी थोड़े ऐसे मजे अभी वो करेंगे, बट जैसे ही कैमरा ऑन होता है और वो अपनी लाइन बोलते हैं, सेट में जितने लोग होते हैं सब हंसने लगते हैं. सब हंसने लगते हैं. उनका एक वो कमाल है. और उनको रातों की शूट पसंद नहीं है. उन्होंने बोला पर अगली बार की स्त्री में मुझे रात की जगह दिन में भूत आ सकता है क्या? भूत तो सर रात में आएगा. उनको रातें बहुत तकलीफ देती है. कैसी बात है? और भाई सुनने में लगा हुआ है. आपको पता है ये लूप पे चली गई लाइन कि पंकज त्रिपाठी को रातें बहुत तकलीफ देती है. सॉरी पंकज सर, हम आपको बहुत सच में बहुत मिस कर रहे हैं. आप माहौल का समझ गए. माहौल अलग होता है. ये होता है बेसिकली. Oh my God, guys. हम हमें छोड़ देंगे. हम शाम को ऐसे ही बातें करते रहेंगे. आप अपने सवाल वही मुझे लग रहा है. But I have to जो say, को एक्टर हमारे साथ बैठा होता है उसको कहते हैं नेशनल अवार्ड चल रहेगा. जो एक्टर को एक्टर नहीं होता साथ में तो रातें तकलीफ देती है. so yes, guys, the love that all of you share, I have to sum it up saying that you are not just three star cast, but you are Stree Parivar, and we also feel that we are a member of your family. So yes, Yes. our audience is now, our media partners are now eager. Let's have the Q&A session. Already started. Hi Shraddha, hi Raj, how are you? Hi. How are you? My coffee friend. Coffee day like Long that. time. I know it's been a while, it's good to have you here. So Shraddha, I'm asking you, revisiting Stree after 6 years, right? You first approached her, and now, what was the difference? What is the difference 6 years ago and now? Like, So we're all the same characters. The world is the same. And of course, before going on set, it felt like, 5 साल गुजर गए हैं. It's been a long time. But the moment, I think I can say this for our entire gang, maybe that the moment we went back on set, the moment we started getting back into the zone of Stree, मेरे लिए तो it felt like, it's not been that long. ऐसा लगा कि it's a continuation of the journey of the first part. And very honestly, when you're on set with this group and everyone is just, of course, I mean, as I said, extremely talented, and I just think so excited to be a part of a film like this. Very few actors, I think, get to be a part of an entertaining film which has a deeper social message also. So it just felt like not much time has passed, but at the same time it felt like, okay, it is a new journey because now the threat is larger. The characters are moving forward in their own journeys as well. But this has been one of the best films for me, the best group, the best gang that I could be a part of.
And you know, I really feel very lucky that they feel like I could have been included in this. Are you anything like this Srika character yourself? They're all looking at I think there is a lot of mystery around Shraddha. वो है in a good way of course. सब पूछते रहते हैं कि कौन है आपकी लाइफ में, आप शादी कब करेंगे? इतने सारे वो questions. एलिमेंट है वो मिस्ट्री तो है, क्यूरियोसिटी और मिस्ट्री. वो mystery है. तो मतलब आपको याद करने सब आ जाती है? Am I anything like her? Yeah? I have to say, or like the character that I Yeah, play. character. I definitely have to say that Stree is a very empowering film. So I feel very empowered by the entire journey. I don't know if that answers your question, but I feel extremely empowered by the journey. I feel like the subliminal messaging of the film, even with the first part, I think it's incredible that Dino decided to make a film like this, which makes society think and makes us think in the most entertaining way. So I think that I do feel very empowered, and I do feel very empowered, I have to say. I don't know if Dino knows this and if Amar know this, but I do feel empowered to be fearless in the kind of films that I want to do as well, and they've actually played a role in this by giving me a film like Stree. Awesome. And before I pass on the mic, I want to ask you, it's nearly 15 years since Teen Bhakti when we first met. What has changed in the process? Have you changed as an actor? You कभी आजकल बहुत pick and choose करती हैं. There's so much that has, it's been a beautiful time, but I feel like, you know, I feel like there's so much more work I have to do. I don't think I've done very many films, very honestly. So I feel like there is a lot more that I want to do, and I really feel like the best is yet to come, and I feel like this is a very exciting time for me as well. There have been some incredible films that I've got an opportunity to be a part of, and Stree is up there. And I really hope that, you know, I can be a part of more memorable films and do really good work as an actor. I think what you asked, in 2 years, she's been picky. Right? So the fact is, it's going to be worth the wait. Absolutely. I think it's so I don't want to. When you see the film, all the others are known as actors, right? And Shraddha is actually has the maximum growth. So when you see the film, you will, you know, they say a star's born, you will see a very superior actor. So this is just her beginning, I think. Awesome. And asking you, Amar, who's the making between the two of you? आप दोनों की क्या collaboration? You know, Who's the? Stree and Mickey between the two of you, because your collaboration goes from Stree and one. आप में से स्त्री और विक्की कौन है? मैं स्त्री. Because मुझे पिक्चर नहीं आती. Next Independence Day. क्योंकि हमारे को जब भी कुछ काम करवाना होता है वो उनकी आंखों में बहुत प्यार से देखते हैं और बोलता है कि भले ही हमारी फट रही है पर ये काम तो करना है. Oh God. Hi, this is Sarika, Ayrton Entertainment Money Control. So Raj, it's for you. I mean, how different is Vicky this time? How different is Vicky in Stree 2? And how have you grown as an actor from Stree to Stree 2? Is there also any pressure? Certainly I've grown as an actor, I feel, because the more you work with better directors, I think you grow as an actor. And that's what my aim has been always, to explore different characters, to grow as an actor with every film. So I feel certainly there's a growth. And also you have those 6 years of experience of living life, so the maturity comes in. So everything I think comes together eventually. How Vicky is different this time? I think last time he was talking about peacocks and like मोर पे टिकन सुनाता था. इस बार जो है वो चंदेरी का देवदास, विक्की बावरा, टूटा दिल चंद्र जिसका प्यार आ गया था, कबीर सिंह, सुखा वर्जिन. इस बार वो अपने बारे में बात करता है कि what has he become. But it's more fun. I think certainly I would say all the characters, it's double the fun, double the entertainment, double the threat, and double the canvas. Hi Shraddha. Shraddha, it's for you here only. Yeah, how has Stree 2 been for you from Stree 1 to Stree 2? I mean, how is it different? Your character was earlier
a very mysterious character, but now it's shown a very powerful one. So how do you see it? And is there a pressure that will Stree 2 be performing so well? Because we're getting reports that it's doing really well at the box office collection, pre-advance collection. You know, for all of us, our characters are the same, as I was saying, and all our characters move forward. The narrative is moving forward, and it is, as I was saying, an extremely special film for me, where you're entertaining everybody and at the same time giving a very, very important message. I think it's similar to what I said before. It's the same world, but the threat is larger, and my character still maybe has that mystery, and just the way in Stree 1, it leaves you with questions. Some questions will be answered in this one, but there will be new questions as well. And about the pressure, I would say, you know, we were really, really happy making Stree 2. We were, as Amar said, we were keenly waiting to be back together on set. We had a lot of fun making it, and the kind of reports we've also been hearing, I think it's a great sign. It's a great sign for cinema that, you know, a film like Stree 2 is coming, which got so much of love in part 1, and now we can't wait for all of you to go and watch it, because we are pretty sure that you guys will love it and just make it your own. And you know, of course, as we're talking about, you know, the business of the film and the reports, etc., there is no bigger feeling than the kind of love that you get from the audiences and the kind of love that a film gets from the audiences. I think that is the ultimate kind of validation. श्रद्धा है हिमांशु दिस साइड सो ऑलरेडी इस स्क्रीन पर जो है काफ़ी हार है फिल्म को लेकर, प्रमोशन को लेकर, कई सिटी टूर में आपको इतनी मेहनत करते हुए देख रहे हैं पूरी टीम को। कल क्योंकि बहुत पॉजिटिव डे है 15 अगस्त है, लेकिन कल 2 फिल्मों के बाहर और आपको उठाने हैं, तो कितना टफ आपके लिए होने वाला है आपकी टीम के लिए, क्योंकि दोनों बहुत ही बड़े स्टार हैं, दोनों बहुत ही बड़े जॉनर की फिल्म है। तो कैसे आप उस कॉम्पिटिशन को देखते हैं, 3 फिल्में एक साथ देखते हैं? मुझे लगता है कि all of us are very excited about any film releasing, and you know, we hope that all the films do well. We hope that people enjoy all the films that release, and यार हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा अगर फिल्में चलेंगी, and wishing all the best to all the films, and we hope that people go and watch Stree and enjoy it as well. Hi guys, this is me, Chinmay. अगर मैं खड़ा हुआ तो लोग मेरे को सकड़ा कर देंगे, इसलिए मैं खड़ा नहीं। सो मैं आपसे ज़्यादा स्त्री का, इस फिल्म का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और नॉट जस्ट मी, मेरी मॉम भी बहुत बड़ी फ़ैन है, और हम लोग 3 बार चंदेरी जा चुके हैं इसके लिए। अभी पिछले हफ्ते भी हम वहीं से आ रहे हैं, अभी भी आपके ट्रेसेस वहाँ पर हैं, राजा रानी महल, कटी घाटी पे, या फिर किला कोठी पे, या फिर ग्राउंड पे जो SFC लिखा हुआ है, सरस्वती फूड कोर्ट, वो अभी भी है। द क्राउड जो वहाँ पर है वो उतनी ही चाव से बताता है कि यू नो ये स्त्री वाले आए थे पिछले साल और वो शूट करके गए हैं। सो हैट्स ऑफ यू गाइस। और मैं सबसे बड़ा फैन हूँ अमर सर आपका, क्योंकि आपने बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म को बनाया है, और आपने पूरे कैरेक्टर्स ढूंढे और आपने किया है सब कुछ। मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, आप सभी एक्टर्स से है, कि ये जो फिल्म थी, बिकॉज आई टेक केयर ऑफ द हेल्थ वर्टिकल ऑफ दैनिक जागरण, ओनली माय हेल्थ, सो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हेल्थ से जुड़ा हुआ होगा कि ये जो जॉनर है हॉरर कॉमेडी, इसमें एक्टर्स आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहता होगा कि आप एकदम से स्विच हो रहे हैं हॉरर में, एकदम से स्विच हो रहे हैं कॉमेडी में, तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू गाइस टू मेंटेन योर ओन मेंटल हेल्थ एंड सैनिटी while switching so easily between comedy and horror? I think first of all, I would say that I would absolutely, I second your opinion that we all are Amar's fan. This film is this because of his, you know, the way he made it part 1 and now part 2. We all love him, he's a brother. About the, I think, you know, it's so much, it's fun. You know, honestly, like when you do a horror comedy, it's a lot of fun doing that film. Even when you're getting scared, you are getting scared, but somewhere you also know that, you know, it might come across as funny to the audience, like which happened in part 1. There were so many moments where we were getting scared, but people were laughing. So we were very sure that, you know, we have to be aware of the fine balance of the thin line, that it should not become too serious where it becomes only a horror film. The horror is very real though.
But I think that has been taken care of. That we don't take things so seriously that it becomes another film altogether. And after cut, as Amar said, the moment you hear cut, we are back in our form and we are back in our senses and we are just cracking some stupid jokes. So I think that really maintains some balance amongst all of us. Also मुझे क्या लगता है कि जितनी भी हॉरर है, तकलीफें हैं, डर है, सब चीज़ों का सॉल्यूशन हंसी है, सो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि लोग कोई भी इमोशन फील करें, उसके साथ उसमें एक ह्यूमर ऐड कर दें तो वो इमोशन उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। सो मेरे लिए चाहे वो डर है, चाहे वो ट्रेजेडी है, ऑब्वियसली ट्रेजेडी में ज़्यादा कॉमेडी नहीं कर सकते, बट ये मुझे लगता है कॉमेडी हमारी कॉमेडी वैसी वाली कॉमेडी नहीं होती है जिसमें उछल कूद करते हैं, हम सिचुएशन ऐसी करते हैं कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, डरते हुए जा रहे हैं, भाई डरते हुए जा रहे हैं, हाथ पकड़े रहना, इसमें ही हंसी आती है। एंड देन उसके बाद उसमें सच में कुछ हो जाता है ऐसा, किसी को कोई छोड़ जाता है अकेला। Actually, डर ना, sometimes I really feel scared for him because the way he starts enacting the scenes, sometimes more energy than us. बहुत behind the monitor. सही बात। अरे यार ये करना है, कैसे करना है, पता नहीं ये नहीं करना। आप अपने तरीके से करो, बट ऐसा मतलब मुझे लगता है कि मेरे पास शब्द कम होते हैं बताने के लिए कि दिस सीन हैज दिस पोटेंशियल। मैं उनको करके दिखाता हूँ कि सर ऐसा कुछ करना है, अब आप अपने हिसाब से कर लो। और मैं बोल भी देता हूँ क्योंकि राज को पहले मुझे इंडायरेक्ट नहीं ऐसे बोला, यार मुझे कोई एक्टिंग करके दिखाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। तो मैं बोला मैं कैसे समझाऊंगा तो मैं करके देता हूँ ऐसा कुछ करके, ऐसा नहीं करना और डर मतलब हॉरर का भी एकदम फंडा इतना ज्यादा हो जाता है कि इतनी ज्यादा मतलब हम लोग अंधेरे रातों में करते हैं, काली रातों में इमेजिन करना पड़ता है, एक्टर्स तो थोड़ा सा करते हैं, तो मतलब ऐसा भी कुछ हो जाता है कि जैसे मैं और राज एक दिन रात को खाना खा रहे थे और हमें खांसते हुए बंदर से डर गए। वो बंदर बेसिकली खांस रहा था, हमें लगा पता नहीं कोई आ गया है और डांट के उठा लिया। हाथ कैसे किया तो होता बट ब्रदर कुडोस टू यू मैन, जिस तरह से आप उस फिल्म को ब्रीद इन करके वापस वहाँ गए और आपने सारी चीज़ें याद रखी हैं, एसएफसी वगैरह। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं मेकर की जीत है, बट आई थिंक ये ऑडियंस का प्यार है जो हम यहाँ पर वापस स्ट्रीट लेकर आए हैं, एंड यू आर डेफिनेटली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑडियंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट एंड गोइंग बैक टू चंदेरी एंड गिविंग दैट लव यार, थैंक यू। हाय गाइस इन फ्रंट रो, सर रोहित शर्मा बोला था हाँ रोहित शर्मा। तो सवाल ये है कि सवाल क्या मतलब पवन सिंह का गाना है फिल्म में, तो दिनेश सर से जानना चाहूँगा सर ये गाना कैसे आपने अप्रोच किया पवन सिंह को, क्योंकि बॉलीवुड में भी उनका शायद डेब्यू है, पहला गाना उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में से निकल के बॉलीवुड में गाया, तो आप सब पहले तो पूरी कास्ट को यार कुडोस, बहुत जबरदस्त डांस किया सर। थैंक यू सो मच। तो ये गाना सर जबरदस्त डांस किया सबने। तुम्हें नहीं बोल रहा तो आपको ऑनेस्टली बताओ ये हुआ कैसे। हम अपने गाना रेडी कर दिया था, कल लॉन्च था, तो हम सोच रहे थे कि आवाज कहाँ से लाए, तो एक्चुअली मैंने पवन सिंह को एक शादी में गाते हुए सुना था, और वहाँ मैं जिगर भी था मेरे साथ, जो म्यूजिक डायरेक्टर सर, तो उसने नाम दिया तो बोला कल लॉन्च है। हमें पवन सिंह जी से मैं कभी मिला नहीं हूँ, हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, हमने रात को फोन किया, सुबह डब हुआ और रात को लॉन्च हुआ, और हमें ऑनेस्टली मालूम नहीं, हमें मालूम था कि कोई बहुत बड़े स्टार है वहाँ, लेकिन इतने बड़े स्टार हैं ये हमें लॉन्च के बाद मालूम पड़ा, क्योंकि उन्होंने जैसे इस गाने को और स्त्री को अपनाया, बिकॉज श्रद्धा और राज गए थे और मैंने 2-3 क्लिप्स देखी, उन्होंने इतना प्यार किया है, और मैंने रियलाइज किया है कि नॉर्थ की एक खासियत है कि जब प्यार करते ना पूरा दिल खोल के करते हैं, कंजूसी नहीं है उसमें। तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ, बिकॉज आई नहीं को अगर वो नहीं आते तो आई नहीं होती इन अ वे। सो कोई इन पिक्चरों में हर गाने की एक किस्मत होती है, तो वो हमेशा लास्ट 24 घंटे में निखर के आता है, और ये ऐसा बैठा है कि मेरा जो 2.5 साल का बेटा है वो आज राज को मिला, तो वो उसको बोल रहा था, ये बोला मेरे को ना क्या काका बोला काकी काकी क्यों बुला रहा है राज को, तो वो काटी बोल रहा था। So that is the power of good music. So I judge music with how my children react to it.
because I feel they're the most honest. So if he likes a song, generally it goes through the roof because you know it's that simple. So yeah, thank you to Pawan Singh ji for Stree ko Char Chand lagane ke liye, and thank you for Raj for becoming Kaki. I'm his Kaki. Yeah. You're his Kaki. अच्छा सर, I want to add to that कि मैंने और श्रद्धा ने लाइव विटनेस किया है that Pawan Singh जी is truly a power star जिनको बुलाया जाता है. हमने वो फ्रेंजी देखी है, हमने उनका power देख लिया है, वो पावर देख लिया है. And also I want to add here because आपने सही एकदम चुना. I think तीनों की दिनेश की एक कमाल की खासियत है कि वो जिस तरह की चीज़ों को देखते हैं. Like this was a great idea of thinking कि let's have Pawan Singh do this song a night before. तो I think that's why I think बहुत सारे लोग आजकल उनको गोल्डन बॉय ऑफ द इंडस्ट्री बोल रहे हैं कि वो जो भी टच कर रहे हैं वो सोना बन रहा है, टच वुड डायमंड भी बनता रहे. And I think it's his vision also, the way he sees things, the kind of confidence he has on his films. A lot of times people like, yeah, but he only film, and he's like, no, I have faith in this film. I'm going to put it out there, and it works for him. I don't know how he does it, but it's great how he does it. I also want to add to that because I don't know any fearless maker like Dinu today. उन्होंने मुंजा जैसी फिल्म रिलीज की है, which is with newcomers, a VFX character, and someone to have faith in that content, and that film has gone and won the hearts of people and done the business that it's done. So to be a part of a production house like Maddock, you know, where they have that blind faith कि मतलब हमें content में believe करना है, लोगों को entertain करना है और उस पे खरा उतरना है. तो I feel कि जो fearlessness है in Dinu, in the team of Maddock, in Amar, it's incredible to be a part of that journey as well, because that way you are staying true to entertaining the audiences. You know, a film like Munja has come and done what it has done, so it's incredible. And I think एक ही इंसान को म्यूजिक सेंस भी करेक्ट हो, नंबर सेंस भी करेक्ट हो, you know, पैकेजिंग सेंस भी करेक्ट हो, और ये सब एक साथ होना एक ही टाइम पे एक ही इंसान मुश्किल है. So I think सबको पैसे पहुंच जाए. And you know, I'm not saying this about your sitting here. Actually, I'm saying this. You know, that was interesting what you said about the money aspect, but also your collaboration with Geo Studio starts from Stree 1. So, what has that been like, and going forward, what can we expect? Geo, Yeah. color भी red है. Stree का color भी red है. It was a direct partnership. And Jyoti Deshpande on the launch had worn red. So I feel she's one Stree who has really added to my life, to be honest. She's been like a mentor. She has nurtured this relationship as much as I have, and I don't feel Stree would be Stree without Geo Studios. I think Munja is your key DPS, please. है ना? Munja की DPS please. Munja की DPS. Hi everybody, this is Ishpa from Hi. ABP Hello. Entertainment Live. मेरा पहला सवाल राज और अपार आपसे है. स्त्री के लिए बहुत कुछ बोला जाता है कि अगर वो आपकी लाइफ में है तो हैंडल करना बहुत मुश्किल है एक स्त्री को एंड ब्ला ब्ला. आप दोनों की लाइफ में स्त्री हैं. वो पर्सन है. हाँ. क्या सच में स्त्री को हैंडल करना इतना मुश्किल होता है? दोबारा से राज भाई अलग से इस पे प्रकाश डालेंगे इस बात पे, लेकिन मैं ऑलरेडी अगर दोनों की तरफ से बात बोल सकूं तो आई थिंक हम दोनों की लाइफ में जो स्त्री आई, पत्रलेखा इनकी लाइफ में, आती थी मेरी लाइफ में, आई थिंक सिंस देन एक आप शुरू से आप में टैलेंट होता है, हार्डवर्क करने की एक इच्छा होती है, यू आर चेजिंग योर ड्रीम्स, लेकिन थिंग्स कभी ना एंड्स बीट नहीं हो रहे होते हैं. द मोमेंट somebody comes into your life and just completes everything, आई थिंक वही जो आप कह रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूँ, मतलब शुक्र है वो हुआ, शायद पहले हुआ होता तो शायद और बेटर जर्नी चल रही होती. सो टच वुड व्हाटएवर लिटिल आई हैव अचीव्ड इन माय लाइफ, उस स्त्री का बहुत बड़ा हाथ है. उस स्त्री की एक उंगली की रिंग मैं भी पहन के आया हूँ उसे. सो शी इज हियर एंड नाउ आई हैव अनदर स्त्री इन माय लाइफ हु इज माय 3-year-old daughter, एंड टच वुड आई थिंक गॉड हैज बीन वेरी काइंड. Things could have been better. I think both of us, again, speak on both of us behalf, but I think we have been so lucky that we found such amazing women in our life. And there's nothing more beautiful than love. Just being in love and
just keep falling in love every day again and again with the same person. It's the most beautiful feeling. And today I'm sitting here is because of her, because she keeps me grounded, she keeps me real, she guides me well. She is my strength, she is the love of my life. So yeah, nothing more than that. ओके श्रद्धा, मेरा सवाल आपसे है। बोला गया है कि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, तो क्या आप अपनी वो स्त्री की पावर यूज करती हैं बार्गेनिंग और अपनी बात मनवाना सबसे? 100%। मैं प्रोड्यूसर बोला 100%। कितनी बार्गेनिंग? अगर श्रद्धा को कुछ कराना है, वो स्त्री है, वो कुछ भी करा सकती है, वो आपको कन्विंस करती है, ऐसा मुझे लगता है। और इतने प्यार से कन्विंस करेगी, वो शक्ल भगवान ने ऐसी की है कि आप बोलोगे हाँ यार ठीक है, करेक्ट ही बोल रही होगी। I think being a woman in itself is a superpower, and I feel like it's a film like Stree also, to have a film that is called Stree is very empowering. I think for me, for women around as well, and so I just feel like, I don't know if this answers your question, but I feel like being a woman in itself is a superpower. डेफिनेटली। अभिषेक, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा। आपकी 2 फिल्में रिलीज हो रही हैं, आपको क्या लगता है कौन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है? ऑल्दो आपने 100% दिया है, हाँ जी बताओ, लेकिन हम सब सुनना चाहेंगे इसका जवाब। मैं तो आप ही की तरफ हूँ। हमें पता है एडवांस बुकिंग में क्या चल रहा है, पर मैं आप बताओ। हाँ नहीं मैं लेकिन चाहूंगा कि दोनों फिल्में चले। एडवांस बुकिंग में हमको सबको पता है कि किसकी ज्यादा कमाई होने वाली है। आपने देखा, हमें बोल रहे हैं, मतलब स्त्री इसकी नहीं है। अरे मतलब आपको देखा मैंने, आपको कमाई, ये बोल रहा है कमाई तो आपके ऊपर पैसे उसको मिलेगा। वो तो ट्रू भी है। एग्जैक्टली। बट यार चलनी तो सारी फिल्में चाहिए, क्योंकि आई थिंक थिएटर्स का वैसे भी बहुत टाइम से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि लोग थिएटर तक नहीं आ रहे है ना। हम हमेशा बात कंप्लेन करते हैं कि यार ऑडियंस थिएटर तक नहीं आ रही, और हमारा पूरा इंडस्ट्री जो है वो सफ़र करता है अगर पब्लिक इन थिएटर्स पे ना आए, क्योंकि बहुत एक वैसा कल्चर शुरू हो गया है जहाँ पे लोग OTT पे वेट करते हैं कि यार फिल्म रिलीज हो जाएगी, कोई बात नहीं, 1 महीने बाद OTT पे आ जाएगी, वहाँ देख लेंगे। बट मैं जनरली बोल रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस आपको थिएटर में जाके फिल्म देखने का होता है, जहाँ पे आपका कोई घंटी नहीं बज रही फ़ोन की, कोई आपको डिलीवर करने नहीं आ रहा है, आप बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे इंस्टाग्राम से, वो पूरे सराउंड सिस्टम के साथ आप फिल्म देख रहे हैं, उसकी दुनिया में जिसके लिए डायरेक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं वो वर्ल्ड में लेके जाने के लिए ऑडियंस को। तो आई होप कि मतलब इतनी सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं, इससे वापस पब्लिक का जो हुजूम है वो थिएटर्स तक आए और हमारे इंडस्ट्री को और पैसा मिले। On a serious note, 15th August is such a big date that it has the capacity for everyone. And if you go to book my show, everyone has shows. So, it's ultimately a day where people want to go out. They want to go to a cinema. And I feel they are all 3 different kinds of film, offering 3 different, it's like going to 3 different cuisines. So there's an opportunity, and I hope for the audience and for the industry, say call to it. Hi, Sonal here from Zoom. Hi. Hi Sonal. Because I रोना पड़ा था कि वो सब कटा वाला था. So first of all, many नहीं है, इसको कुछ नहीं करना, वो खड़ी हो सकती है। Thank you so much. I'm flattered. So many congratulations for Stree 2. And we are really looking forward to this. बहुत वेट कराया आपने, not fair. 6 साल बहुत नंबर आई होगा. बहुत वेट किया है हमने genuinely. But we are really excited. लेकिन one thing I would like to ask, and this is for all 3 guys here, Apar, Abhishek and Raj. आप तीनों से नहीं, I mean about the actors. आप लोग तो मतलब Amar picture में acting कर रहा है. Amar is also part of the cast. Absolutely, हाँ, definitely. He तो showed ना how to act. और मेरा रोल कर दिया. I would really like to ask कि पहले ये होता था कि actors जाते थे, shoot करते थे, and they were like घर आ गए and they are on to the another shoot. But the level of bromance you guys started with Stree 1, the 3 of you, and in fact the 4 of you, because Shraddha का भी वो थोड़ा बीच में वो आ जाता था, and her laugh is so infectious. Oh my God, Shraddha, your laugh is really infectious. But generally the level of bromance you 3 have started, how does it make you feel? क्योंकि शुरुआत तो आप लोगों ने कर दी थी, वो जो एक हम लोग अंदाज़ अपना वाला लेवल दोस्ती का देखते थे ना, उसको वापस इस जनरेशन में लाने वाले आप तीनों हो. How does it make you feel? Thank you so much. Wow. अंदाज अपना के साथ टचवुड हमारी बहुत बढ़िया हो रही है. You know, honestly, ऐसा हर बार नहीं होता है कि you get
such amazing co-actors who become your brothers. And स्त्री की जो backbone है वो इसकी friendship है. You know, बिट्टू, जना और विक्की की जो दोस्ती है वो एक बहुत important factor है फिल्म का. And I'm so glad, you know, we have Abhishek and Apar in the film because it wouldn't have been possible otherwise. Because none of us are insecure, none of us are jealous. You know, there's nothing negative in our friendship, in the way we approach a scene or the way we approach our work or the film. I think that's why you see that romance, because we genuinely love each other in life. You will never see a film set. I'm so sorry, Moses. You'll never see a film set where 3 actors standing in front of the frame and saying this to each other. Do you like it? You'll never see a unit like that. And I think जो romance है, that's what. और अभिषेक लाइन ले लेता था. Thank God someone said it. तो आप दोनों मिलके अभिषेक को लड़की दिलवा रहे हो नहीं दिलवा रहे हो? I mean, अब वो ही रह गया है. तो I think next time ये होना चाहिए कि जैसे आप दोनों से पूछा गया. Next should be. आप एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए. पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हो कि फिल्म की? नहीं, मैं फिलहाल तो पर्सनल लाइफ की बात. अरे वो शादीशुदा है, ये आगे जो क्लास छुपा है. नहीं, वैसे नहीं ना, वो वाला जो स्त्री वाला जो सबको बहन बना रहा है, सबको गलत. नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सिर्फ टीना के साथ ही रहे. वो सबको भाई बहन बना रहे हैं, इसलिए सबको बहन बना रहे हैं. बहन बना दिया, श्रद्धा को तो बहन नहीं बनाना. नहीं, वो श्रद्धा को बहन बनाने दो, वो सिर्फ टीना के साथ रहे. वो नहीं चाहती है बहन बनाना. तो बिल्कुल छूट मत दो इसको. ऐसा श्रद्धा को कोई बहन नहीं बनाना चाहता, उसकी गलती नहीं. मैं एक चीज बोलना चाहूँगा. जनरली ये हमारी दोस्ती ऑफ स्क्रीन पर भी मुझे लगता है इसलिए इतनी गहरी है क्योंकि शायद मैं अपार को कभी अपार की तरह नहीं, बिट्टू की तरह देखता हूँ. राज को हमेशा विक्की की तरह देखता हूँ. और आई थिंक हम ये दोनों मुझे जना की तरह देखते हैं. जबकि मैं हूँ नहीं जना जैसा रियल लाइफ में, काफी इंटेलिजेंट आदमी हूँ. बट आई थिंक इसलिए हमारी दोस्ती गहरी है. जना को भी लगता है वो इंटेलिजेंट. बस Shit. I love this reaction. जना ऑनलाइन. यार मुझे कभी बट मैं ये बताता हूँ, सच में हम लोग डायलॉग लेके जाते हैं, बोलते हैं आपस में पार्टी किसको क्या बोलते हैं. और ये लोग थोड़ा बहुत होता है कि मतलब ये है, बट आपस में जब तक टेक पे जाते हैं तो लगता है अरे ये वाली लाइन बिट्टू को बोलनी चाहिए. बट बिट्टू बोलता है नहीं ये वाली लाइन जना को बोलनी चाहिए. आखिर में सब जना ले. हंग्री है, ओवर हंग्री है. आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको. आपका दिन मंगलमय हो. Alright guys, last 2 questions. Hello. This is Varnika from Live Hindustan. मेरा क्वेश्चन श्रद्धा से है. हमने स्त्री 2 का एक गाना देखा जिसमें आप वरुण धवन के साथ भी हैं और राजकुमार के साथ भी हैं. अगर रियल लाइफ में किसी की गर्लफ्रेंड बनेगी तो आप कैसी गर्लफ्रेंड बनेगी? रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग? I think I am the most correct kind of red flag. And it was amazing, by the way, to be a part of that song and to be a part of their vision of, you know, Bhediya, Stree mein Stree, ya in the horror comedy universe, jaise I was in Kunkeshwari also. So I think this is a larger plan of Maddox's horror comedy universe where all the characters will hopefully be in each other's films and we will have our own massive horror comedy universe, which is such a proud moment I think for India. And to answer your question, you know, actually क्या होता है कि when you're growing up, girls and boys you sit and you make a list, correct? कि मुझे ऐसा partner चाहिए, मुझे ऐसी girlfriend चाहिए, ऐसा boyfriend चाहिए. But the list that I make is what kind of a partner do I want to be and what kind of qualities that I want to have. And that is what I focus on, that, you know, I want to be the best kind of partner because I fully believe in a fairy tale romance and I would want to be the best partner for my partner. इसीलिए दोनों पीछे पड़े. तो she's become the best partner. Hi everyone. First of all, we should all give a very huge round of applause. स्त्री वापस आ रही है और इतने अच्छे तरीके से ये सवाल आज़ाद हुआ. उसकी स्त्री मूवी जो है थिएटर्स पे आज़ाद होगी. माय नेम इज़ मनीषा, आई एम फ्रॉम आजतक. मेरा सवाल बिट्टू और जना से है. रोमांस की तो बात हुई, बट मैं आपसे पूछूंगी कि कितनी मेहनत लगी
विक्की जी है वो इस बार चंदेरी के देवदास या सूखा वर्जिन ना है, इतनी मेहनत लगी है। ऐसा क्या क्या तुमने आपको सूखा वर्जन है अभी तक या नहीं है, ये तो आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। यार आई थिंक अगर कैरेक्टर की बात करें तो जब तक वो कैरेक्टर की बात सूखा वर्जन रहे तब तक वो ऑडियंस के लिए एक्साइटिंग है, तब तक वो ऑडियंस के लिए और एक्साइटिंग है। तभी आई थिंक वैसे मोनोलॉग्स निकलेंगे जो बैक टू बैक स्त्री 1 में या स्त्री 2 में आपने रात से सुने। बाकी पाजी स्टड मफिन है तो अपनी परफॉर्मेंस से सूखा वर्जन ही रहते हैं। नहीं अरे स्टड मफिन है तो जो परफॉर्म का मतलब बता दे क्या मतलब इसका? कूल डूड भैया जी स्कूल तो इसलिए अपने परफॉर्मेंस से वो कभी सूखे वर्जन रहते नहीं। सो बट जना आपका क्या होगा, आप हमेशा बहन कुछ नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बोला है यार कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना, इतना अच्छा लड़ता है, ऐसा सुशील लड़ता है। जना मतलब चंदेरी में कोई तो होगी, हाँ कोई तो होगी जिसको जना पसंद है। मिलेगी तभी वो गाना में पूरे उम्मीद है। एंड सीरियसली मैं जो है पंकज त्रिपाठी सर को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं वेट कर रही थी कि काश वो भी आते हैं, आज हम लोगों के बीच में होते हैं। कभी कभार वो अपने आप को ही मिस करते हैं। बट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हम चाहते हैं कि अच्छा रिस्पॉन्स। थैंक यू। Hi all of you, I am Artis Nag from NBC Bharat. Sorry, where are you? पूरी टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आप 15 अगस्त पे हमारे लिए इतनी कॉमेडी हॉरर मूवी लेकर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप स्त्री 3 कब लेकर आ रहे हैं? पहले तो थैंक यू और रेड पेन के आया। थैंक यू। स्त्री 3 सो एक्चुअली इस बार वक्त इसलिए रखा क्योंकि हमने पहले स्त्री 3 लिखी कि ज़्यादा टाइम आपको रुकना नहीं पड़े, फिर स्त्री 2 लिखी। बट आई थिंक स्त्री 3 विल कम 3 years later. सर एक क्वेश्चन मेरा और है कि जब आपकी टीम शूट करती है और इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस है साथ में, तो कॉमेडी या हॉरर करते वक्त कोई ऐसा किस्सा जब आपको खुद हंसी बहुत आई हो या डर लगा हो? डर तो लगता ही था जब भी हम कोई ऐसा हॉरर सीन करते थे तो ऑफकोर्स बहुत डर लगता था, बिकॉज हमारी जो लोकेशंस भी थी वो ऐसा वहाँ से कई बार ऐसी वाइब आती थी कि कुछ हो सकता है। बिकॉज बहुत बार अकेले जाना होता है किसी गैलरी में शॉट लेने के लिए, तो लगता है अरे बहुत दूर निकलना है, जल्दी कट बोलो, कोई नहीं है आसपास, तो वो डर की फीलिंग रहती है। वो तभी वो स्क्रीन पे भी दिखती है, अच्छी बात है वो। आधे बहुत हंसते हैं हम लोग यार, बहुत हंसते थे हम लोग यार, जनरली बहुत हंसते थे, बहुत मस्ती होती थी। सो इसलिए अमर जो हमारे डायरेक्टर हैं, कितनी बार जो है हमारे साउंड डिजाइनर को बोला पड़ता था कि सर एक और देना पड़ेगा, आपके हिलने की हंसने की आवाज़ आ रही है। अच्छा मेरा एक सवाल है कि स्त्री 2 का सबसे बड़ा अट्रैक्शन, स्त्री 2 का सबसे बड़ा अट्रैक्शन सरकटा तो है यार, जो थ्रेट है हमारा सरकटा, वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। सो हम एक्चुअली आज हमारे साथ पंकज जी नहीं है और सरकटा भी नहीं है। We should also be आपके बताने कि पंकज जी पंकज जी की सरकटा तो नहीं है। नहीं बस मैं पूछ रहा हूँ। बट हमको सरकटा जो आपने पूछा था याद है एक सवाल के जो एक नहती व्हाट्स द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, क्रेजी आदमी सोच सकता है जो सरकटा इसने बनाया ना, जब आप स्क्रीन पे देखेंगे ऐसा आई डोंट थिंक किधर भी आया। आई डोंट थिंक इज देयर अ रेफरेंस इन इंग्लिश, आई डोंट थिंक सो। और वो इतना हाईलाइट है ना, सो आप इसे तो सर कटेंगे तो स्पेशली कोई स्पॉयलर्स मत देना, वो कौन है, किसका रिश्तेदार है, बस दिनों ओके। लास्ट क्वेश्चन इनको का बच्चे पूरी स्क्रीन पे बैठ के एकदम नरेट कर सरकटा हैज एन इक्वेशन विद जनरल, वो तो नहीं बता रहा, वो सरकटा इज इनटू जनरल, मत बताओ, वो नहीं बता रहा। ये सब बाहर नहीं आना चाहिए। हाय एवरीवन, दिस इज कीर्ति। और देखा कैसे क्या आपने बात कर दो। हाय एवरीवन, हाय मैम। माय क्वेश्चन इज फॉर श्रद्धा जी। पोस्ट पैंडेमिक की आपकी दूसरी फिल्म है, तो आप स्क्रीन से इतना दूर क्यों है? एज अ फैन वी मिस यू ऑन स्क्रीन, व्हाई इज दैट? But Why, see, sir? Why? We really want to know. see, I want to do the best kind of films, like Stree, and I feel like as an actor also, I want to be play characters that make me feel like मैंने ऐसा कुछ पहले नहीं किया है, and
a lot goes into making a film, you know. So I want to do a film for the right reasons. I want to play characters that I have not played before. I want to be a part of films that people will remember and say कि वो अच्छी पिक्चर थी. So जब तक मुझे वो फीलिंग नहीं आती ना, मैं पिक्चर नहीं करूँगी. तो अब स्त्री आ गई है और इतना प्राउड फील हो रहा है that I can say that I am a part of such an incredible film. So I need to feel this way whenever I'm doing a film. Thank you. Hello everyone, this is Simran Kinswani from ZMediaIndia.com. First of all, you all look great in the trailer. So I want to know that this movie is about supernatural powers. So I want to know, have you encountered a ghost in real life? Once I went to Abhishek's room, वो सो के उठा था. मैं काफी डर गया. मेरे साथ तो सुबह ही हुआ. ये दोनों रात को साथ में सोए. तो आई थिंक वो थोड़ा स्कैरी था. बिकॉज़ जैसा हमने कहा वो बालों में बहुत टाइम लेता है. तो मैंने उसके ओरिजिनल बाल देखे थे, वो टाइम बिना लिए. मेरा हेयर स्टाइलिस्ट ये यूज कर रहे थे यार, इसलिए. No, I think on Stree when it happened, of course, we had some kind of experience, like a spooky experience. But on Stree's booth set, I think it was more fun, than having spooky experience. And also, I feel somewhere, Ghost ने भी शायद हमारी फिल्म देखी, उनको लगता है ये तो अच्छी फिल्म बनाता है यार, इनको नहीं डराते हैं. So they like the film a lot. Stree को नहीं डरा. यार जब मैं दिल्ली रहता था ना, तो 3:30 बजे रात को गुड़गांव से वापस आ रहा था, और ये GK1 GK2 का जो फ्लाईओवर है, ये NDTV वाला सविता सिनेमा, वहाँ दिखी थी, मुझे भी दिखी थी. यार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. दिस इज नॉट समथिंग कि हमारी हॉरर फिल्म आ रही है और किसी ने सवाल पूछा तो मैं ये बोल देता हूँ. मैंने सच में वहाँ किसी को देखा था और वापस में यूटर्न लेकर आया उसको ढूंढने के लिए. वो तो यूटर्न लेके क्यों आया मुझे समझ में यार. यूटर्न लेके क्यों आया रात को? यार क्योंकि हम अब भी तो ढूंढने निकले हैं वापस दोबारा. पिक्चर भी तो वैसे ही बनती है कि दोबारा देखने जाते हैं कि क्या हो रहा है अंदर. नहीं, कोई भी नहीं चाहता. तुम ऐसे लग रहा है भूत है, तुम आगे से यूटर्न लेके आए. ये मैं चेक करने का सच में था कि नहीं. तुम तो चेक करने का भूत को कि था कि नहीं, कि मेरी आंखों का भलेखा था. आज तक क्लियर नहीं हो पाया. आज तक क्लियर नहीं हो पाया. सो यार पर ये था ना, मतलब आई थिंक जितने भी दिल्ली वाले हैं वो जीके वाले क्रॉसिंग में होते हैं. ये सच है. सब कुछ वहाँ पर. अरे बहुत स्ट्रॉन्ग है. पक्का वो स्त्री वो बस सफेद साड़ी में आती थी, बाल भी सफेद है. रियली इज नॉट दैट स्टोरी कि यार वहाँ पे सबको डराएंगे बोल के रात को सारे दोस्तों को बिठा के. ये ऐसा हुआ है मेरे साथ. आई डोंट इवन बिलीव इन इट. तब भी हुआ. वो यहाँ पे है. हेलो, हाय श्रद्धा. हाय हाय ऑल. श्रद्धा, हमने देखा फिल्म स्त्री में किस तरह से जो स्त्री होती है वो सच्चे प्यार की तलाश में होती है. वो उसकी कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं. बट अगर रियल लाइफ की बात करें तो श्रद्धा को अगर कोई पार्टनर चाहिए तो उनमें क्या क्वालिटीज वो एक्सपेक्ट करती हैं एज अ स्त्री और एज अ श्रद्धा? तो अभी जस्ट मैंने बोला कि मैं खुद में जो क्वालिटीज लाना चाहती हूँ मैं उस पर फोकस करती हूँ कि मैं कैसे एक परफेक्ट पार्टनर बनूँ. And I think that is something that is important to me. अभी just same answer दिया था. तो yeah. Thank you so much everyone.